Hello friends, I am Dr. Jigar Agarwal, Associate Professor and Head of the Department for the subjects of Accountancy, Law and Taxation at JG College of Commerce. Today I want to discuss a very important but very easy topic, and the name of the topic is Valuation of Goodwill for the SY BCom students semester 3. Before we get down to solving the example, let us go through the basic important points associated with valuation of goodwill. अगर ये बेसिक नोट्स, ये बेसिक पॉइंट्स आप अच्छी तरह से समझ जाते हो तो आपका जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी है वो आपको सारे सब सही कर देगा. So hopefully I hope that you will pay attention and observe all these points that I'm about to discuss. There are basically 5 steps involved in the valuation of goodwill. Namely, step number 1, you have to find out capital employed, that is equal to assets minus liabilities, and of course you have to deduct preference share capital in the end. So step number 1 is capital employed, assets minus liabilities minus preference share capital. Step number 2, you want to find out the expected profit. आपका प्रॉफिट क्या एक्सपेक्टेड है? अगर आपने बिजनेस में कोई भी अमाउंट इन्वेस्ट की है तो उसमें से व्हाट इज द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट यू एक्सपेक्ट. So that is what you find out. And how do you find it out? Capital employed into expected rate of return, as you can see on the screen. Step number 3, average profit you have to find out. Fourth step is super profit. Super profit is equal to average profit minus expected profit. And step number 5 is goodwill. And here in this step, at this step, you will get the answer. So goodwill is equal to super profit into number of years, right? Now let us understand all these points in detail, all the steps in detail. For example, step number 1, capital employed. So which I just mentioned, the formula is assets minus liabilities minus preference share capital. Now these are the points you need to keep in mind while compiling the list of assets. कौन सी assets आप ध्यान में लोगे तो उसके लिए ये जरूरी पॉइंट्स हैं, जिसमें सबसे पहले assets आप जो ध्यान में लोगे वो है फिक्स assets, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, बिल्डिंग एटसेट्रा. इनकी वैल्यू आप जब भी ध्यान में लो तो कौन सी वैल्यू लोगे आप? कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन फंड. तो हमेशा वॉच आउट फॉर द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन फंड अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट. अगर नीचे आपको दिए है एडजस्टमेंट में मार्केट वैल्यू दी है तो यू विल ऑफ कोर्स टेक द मार्केट वैल्यू. तो फिर आप कॉस्ट और डेप्री फंड दोनों को इग्नोर करेंगे, राइट? दूसरी जो असेट्स आपको लेनी है, ओनली ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट्स. नाउ व्हाट आर ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट्स? तो ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट्स वो इन्वेस्टमेंट्स हैं व्हिच आर नेसेसरी टू कैरी ऑन द बिजनेस. जो बिजनेस कंटिन्यू करने के लिए, बिजनेस को प्रॉस्पर करने के लिए, बिजनेस का एग्जिस्टेंस के लिए बहुत ही जरूरी इन्वेस्टमेंट्स हैं. तो वहां पे मैं आपको एग्जांपल दिया है. देयर आर 4 ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट्स. व्हाट आर दोस? नंबर 1 इज शेयर्स ऑफ सब्सिडरी कंपनी. अगर ये बैलेंस शीट में है तो आप इनको इंक्लूड करोगे असेट्स में. फिर है प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट्स. थर्ड इज डिबेंचर रिडेम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट्स. एंड फोर्थ इज इन्वेस्टमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन फंड, और समटाइम्स इट इज आल्सो मेंशन्ड एज सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट्स. तो अगर ये 4 इन्वेस्टमेंट्स हैं बैलेंस शीट में तो ये 4 आप अपनी असेट्स में इंक्लूड करोगे. इनके अलावा कोई भी इन्वेस्टमेंट है, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या XYZ लिमिटेड डिबेंचर्स या कोई XYZ कंपनी के इक्विटी शेयर्स, तो ये सारे इन्वेस्टमेंट नॉन ट्रेडिंग है, मतलब विच आर नॉट नेसेसरी टू कैरी ऑन द बिजनेस. तो ये सारे जो नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट्स है वो आप ध्यान में नहीं लोगे, ठीक है? तो व्हाट आर द ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट्स? ये 4 which are mentioned on in the list which you can see on the screen. And all the investments other than these 4 investments are non-trading investments. उनको आप ध्यान में नहीं लोगे. फिर you will also include current assets. What are the current assets? For example, cash balance, bank balance, stock, debtors. But debtors after deducting both bad debts and bad debt reserve, दोनों. प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये सारी चीजें आप असेट्स में इंक्लूड करोगे. अच्छा, असेट्स में क्या क्या ध्यान में नहीं लोगे ये भी तो जरा देख लेते हैं. तो असेट में सबसे पहले इनटेंजिबल असेट में गुडविल आप ध्यान में नहीं लोगे, क्योंकि गुडविल तो हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं ना. वी आर अबाउट टू कैलकुलेट न्यू गुडविल. सो ओल्ड गुडविल अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट विल बी इग्नोर्ड कंप्लीटली. फिर जैसे अभी मैंने बोला नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट्स अदर देन ट्रेडिंग, वो भी मैंने बताया. सो दोज इन्वेस्टमेंट्स व्हिच आर नॉट ऑफ ट्रेडिंग नेचर will not be included in assets, right? अगर आपको नहीं बताया कि सम में आपको बताया नहीं कि ये कौन से टाइप का इन्वेस्टमेंट है, सपोज इफ द नेचर ऑफ इन्वेस्टमेंट इज नॉट मेंशन्ड इन द सम, तो अज्यूम कि वो नॉन ट्रेडिंग नेचर का है और उसको असेट्स में इंक्लूड मत करना. फिर प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट बैलेंस भी आप उसको इंक्लूड नहीं करोगे, राइट? एंड देन इन द एंड देयर आर 4 fictitious assets which may or may not be there in the balance sheet, लेकिन आपकी बैलेंस शीट में है तो आप इसको इग्नोर करोगे, आप उसको असेट्स में इंक्लूड नहीं करोगे. व्हाट आर दोस फिक्टिशियस असेट्स? नंबर 1 इज प्रीलिमिनरी एक्सपेंडिचर अकाउंट,
नंबर 2 इज डिबेंचर डिस्काउंट अकाउंट, फिर अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट एंड एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट. दिस फोर आर fictitious assets and they are not to be included in assets. Clear? Let us move further. We have dealt with the asset side. Now let us deal with the liability side. क्या क्या liabilities में क्या क्या आएगा? तो liabilities will include all the types of loans, secured loans, unsecured loans, short-term loans, long-term loans, debentures, and all the other types of borrowings. All these things will be included in liabilities. It will also include current liabilities. कौन सी है current liabilities? For example, bank overdraft, आउटस्टैंडिंग या अनपेड एक्सपेंसेस, क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, ये सारी चीजें आपकी लायबिलिटीज में इंक्लूड हो जाएगी. फिर याद रखना जरा कि वर्कमेंस प्रॉफिट शेयरिंग फंड इज अ लॉन्ग टर्म प्रोविजन या इट इज अ लायबिलिटी, बट वर्कमेंस एक्सीडेंट कंपेंसेशन फंड इज नॉट अ लायबिलिटी, इट्स अ रिजर्व. So workmen's accident compensation fund will not be included in liabilities, but workmen's profit sharing fund is a liability and will be included in liabilities to be ultimately deducted from assets. ठीक है. लास्ट में एक और चीज कि proposed preference dividend will be treated as a liability, but proposed equity dividend is not a liability. These are very comprehensive points. अगर ये points आप ध्यान में रखते हो तो मुझे लगता है कि आपके सम कभी गलत होने का कोई चांस ही नहीं है. ठीक है. अच्छा, लायबिलिटीज में क्या क्या नहीं आएगा वो भी देख लेते हैं इसके साथ. तो लायबिलिटीज में क्या क्या नहीं आएगा? तो इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ कोर्स इज नॉट अ लायबिलिटी. ठीक है. दैट इज द ओनर्स, दे आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी, रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी, इट्स नॉट अ लायबिलिटी. फिर उसमें और क्या नहीं आएगा? रिजर्व्स एंड सरप्लस भी लायबिलिटीज में नहीं आएगा, जैसे कि जनरल रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट यानी प्रॉफिट, डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड, डिबेंचर रिडेम्पशन फंड, ये सारी चीजें लायबिलिटीज में नहीं आएंगी. Alright, and in the end, do not forget to deduct preference share capital from assets. Right? ये जो हमने ऊपर देखा ना, जो फॉर्मूला में देखा ना, ये स्टेप नंबर 1 में कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू असेट्स माइनस लायबिलिटीज, उसमें आपने देखा ना असेट्स माइनस लायबिलिटीज माइनस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. तो इट इज जस्ट अ रिमाइंडर that you should not forget deducting preference share capital from the assets. All right, and so that's how you will obtain your capital employed, assets minus liabilities minus preference share capital, which you can see. Now let us move further to step number 2. Step number 2 is damn easy. Expected profit is equal to capital employed into expected rate of return, जिसको बोलते हैं ERR. ठीक है, इसको briefly आप कह सकते हो, that is what it is known as ERR. All right, expected profit is equal to CE into ERR. आप briefly ऐसे भी याद रख सकते हो. ठीक है, CE into ERR. ठीक है. नॉर्मली आपको ERR आपको एग्जांपल में दे ही देते हैं, इट इज ऑलवेज गिवन इन द एग्जांपल. लेकिन अगर कहीं पे आपको दिया है फॉर एग्जांपल कि कंपनी का रेट ऑफ डिविडेंड है 20% और उसकी जो मार्केट वैल्यू है वो नॉमिनल वैल्यू से 2 टाइम्स है, तो यू मे हैव टू एडजस्ट फ्रॉम दिस रेट ऑफ डिविडेंड, यू हैव टू ऑब्टेन एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न या नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. सो 20% डिवाइड बाय 2 टाइम्स, तो यहाँ पे ERR कितना हो जाएगा? 10%. ठीक है, बट नॉर्मल इट इज गिवन इन अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर. आपको बता ही देते हैं कि कंपनी का द काइंड ऑफ बिजनेस द कंपनी इज एंगेज्ड इन, द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इज 10%, 20%, 15%, आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर में दे ही देते हैं. तो आपको सीधे वहां से लेके मल्टीप्लाई करना है किससे? कैपिटल एम्प्लॉयड से. अभी हमने फाइंड किया ना कैपिटल एम्प्लॉयड, उससे आपको ये रेट ऑफ रिटर्न मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, और आपको मिल जाएगा EP यानी एक्सपेक्टेड प्रॉफिट. Let's further down. Let's go further down. Step number 3, average profit. आप जानते हो कि अगर प्रॉफिट्स फ्लक्चुएटिंग होते हैं, अप एंड डाउन होते रहते हैं, प्रॉफिट्स आर इंक्रीजिंग एज वेल एज डिक्रीजिंग, तो आप कौन सी मेथड यूज करोगे? सिंपल एवरेज. बट इफ प्रॉफिट्स आर शोइंग अ पर्टिकुलर ट्रेंड, ईदर एन अपवर्ड ट्रेंड और अ डाउनवर्ड ट्रेंड, इफ दे आर इंक्रीजिंग कंटिन्यूअसली और डिक्रीजिंग कंटिन्यूअसली, ठीक है, तो इन दैट केस you will have to use weighted average profit. Otherwise, of course, if profits are fluctuating, you will opt for simple average. लेकिन याद रहे कि ये जो प्रॉफिट मिला उसमें से ये जो एनटीपी है वो माइनस करना मत भूलना, बहुत जरूरी है. एनटीपी यानी क्या? ये मैंने बनाया हुआ है, दैट इज हाउ आई हैव, ये एक्रोनिम मैंने बनाया हुआ है. एनटीपी मींस नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट से जो इनकम आती है वो पहले लेस करोगे, उसके बाद टी फॉर टैक्सेस, एंड फाइनली यू हैव टू डिडक्ट प्रेफरेंस डिविडेंड. तो बैलेंस शीट में आपको देते हैं ना प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, उससे यू कैन ऑब्टेन प्रेफरेंस डिविडेंड और वो यहाँ पे लेस करना है. तो बेसिकली क्या करना है? एवरेज प्रॉफिट सिंपल हुआ, योर वेटेड एवरेज प्रॉफिट, उसमें से 3 चीजें एनटीपी माइनस करनी है, नॉन ट्रेडिंग इनकम, टैक्सेस एंड प्रेफरेंस डिविडेंड, ये 3 चीजें आपको माइनस करनी है. नाउ लेट अस फर्दर सी स्टेप नंबर 4, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एपी माइनस ईपी. आप ऐसे याद रखोगे ना, बहुत जल्दी याद रह जाएगा.
एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। ऑलराइट, तो एवरेज प्रॉफिट अभी ऊपर मिला ना हमें, यहां दिस इज योर एपी एवरेज प्रॉफिट, ठीक है, और उसके ऊपर हमें क्या मिला, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। तो ये ईपी और ये एपी, ये दोनों का डिफरेंस यहां पे, लेकिन डिफरेंस कैसा याद रखना, एपी माइनस ईपी, एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। नॉर्मली यहां पे डिफरेंस पॉजिटिव ही आएगा, लेकिन अगर नेगेटिव आता है तो आपकी गुडविल जीरो है। सुपर प्रॉफिट यानी द कंपनीज कैपेसिटी टू अर्न सुपर प्रॉफिट, बम्पर प्रॉफिट, मोर देन द एवरेज प्रॉफिट दैट पीपल ऑपरेटिंग इन द इंडस्ट्री अर्न। अगर आप ज्यादा प्रॉफिट नहीं कमा रहे हैं, मतलब नेगेटिव प्रॉफिट आ रहा है आपका, एक्चुअल प्रॉफिट इज लेस देन एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, तो आपकी गुडविल यहाँ पे नील हो जाएगी। बट नॉर्मली इन मोस्ट ऑफ द एग्जांपल्स यहाँ पे जो सुपर प्रॉफिट है वो पॉजिटिव आएगा, ठीक है। नाउ लेट अस मूव फर्दर। लास्ट स्टेप यहाँ पे है, यू हैव टू फाइंड आउट गुडविल कैसे मिलेगा, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेस। आपको दे देंगे 4 साल की परचेज, 5 साल की परचेज, 6 साल की परचेज आपको दे देंगे, तो आपको दैट विल गेट यू गुडविल। लेकिन जरूरी नहीं कि आपको नंबर ऑफ ईयर्स ही दे, कभी कभी सम में लिखते हैं ट्वाइस थ्राइस, टाइम्स लिखते हैं 4 टाइम्स, 3 टाइम्स, 2 टाइम्स या ट्वाइस थ्राइस, तो अकॉर्डिंगली यू विल एडजस्ट द मल्टीप्लायर एंड यू विल गेट द गुडविल। Is that clear now, friends? So now let us move to an important example. Of course we all use Sudhir Prakashan book, तो वो बुक में से पेज नंबर 98 में है एग्जाम्पल नंबर 34, मंथन लिमिटेड, दैट इज फ्रॉम गुजरात यूनिवर्सिटी, SY नवंबर 2016 का सम है। तो चलो ये सम सॉल्व करते हैं, लेकिन फिर से 5 स्टेप्स याद कर लें। कौन सा है पहला स्टेप, कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू असेट्स माइनस लायबिलिटीज माइनस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। स्टेप नंबर 2 क्या था, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। स्टेप नंबर 3 क्या था, एवरेज प्रॉफिट, लेकिन उसमें से चाहे सिंपल हो या वेटेड, लेकिन 3 चीजें माइनस करना मत भूलना। कौन सी, एनटीपी, नॉन ट्रेडिंग इनकम, टैक्सेशन या टैक्सेस एंड प्रेफरेंस डिविडेंड, ये 3 चीजें माइनस करना मत भूलना। स्टेप नंबर 4 इज सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एपी माइनस ईपी, एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, एंड गुडविल इज इक्वल टू जो सुपर प्रॉफिट आया मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स या फिर टाइम्स, ट्वाइस, थ्राइस, जो भी एज द केस यू नो, तो इसको इस तरह से मल्टीप्लायर हम उसको एडजस्ट करेंगे। चलो एग्जांपल देखते हैं, लेट अस गो थ्रू द एग्जांपल। यू कैन सी द क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, पहले उसकी एनालिसिस करेंगे। लेट अस गो थ्रू द सम। The following is the balance sheet of Manthan Limited as on 31st March 2020। क्या लिखा है आपके सम में, पहला इक्विटीज एंड लायबिलिटीज में शेयर होल्डर्स फंड्स, शेयर कैपिटल, उसके अंदर जो इक्विटी शेयर कैपिटल है वो लायबिलिटी नहीं है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हम एंड में लेस करेंगे, है ना, असेट्स माइनस लायबिलिटीज माइनस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। जनरल रिजर्व तो रिजर्व है, वो लायबिलिटी नहीं है, सिक्योरिटीज प्रीमियम भी लायबिलिटी नहीं है, वर्कमेंस कंपेंसेशन फंड भी लायबिलिटी नहीं है। Among the non current assets आपके पास 15% डिबेंचर्स है, दैट ऑफ कोर्स इज अ लायबिलिटी, इसको हम लेस करेंगे, ठीक है। तो जब लिस्ट बनाएंगे लायबिलिटीज के तो उसके अंदर उसको इंक्लूड करेंगे। फिर वर्कमेंस प्रॉफिट शेयरिंग फंड विल बी ट्रीटेड एज अ लायबिलिटी, इट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम असेट्स। और डेप्री फंड है जो आपके पास, ये आप क्या करोगे, असेट्स में से माइनस करोगे, डन। और क्या आएगा असेट्स में, जैसे मैंने बोला था ऑन द करंट लायबिलिटीज, तो यहाँ पे कौन सी करंट लायबिलिटीज है, क्रेडिटर्स आएंगे, क्रेडिटर्स भी आएगा, बिल्स पेबल भी आएगा, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन विल बी डिडक्टेड एज अ लायबिलिटी एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऑफ कोर्स इज अ लायबिलिटी। तो ये चारों ही आइटम्स हम लेस करेंगे एज लायबिलिटीज, ऑलराइट। और कौन सी आपके पास असेट्स में क्या है, व्हाट एल्स यू हैव इन असेट्स। असेट्स में आपके पास है टेंजिबल असेट्स, बिल्डिंग एट कॉस्ट एंड मशीनरी, तो बिल्डिंग और मशीनरी दोनों पर डेप्री फंड है, तो ये माइनस करना मत भूलना, एंड यू विल टेक इनटू अकाउंट द नेट वैल्यूज, देयर नेट वैल्यूज, ठीक है। गुडविल है वो तो, अब मैंने बोला था कि पुरानी गुडविल नहीं लेनी है, तो इंटेंजिबल एसेट है, पुरानी गुडविल हम ध्यान में नहीं लेंगे, दैट वी विल इग्नोर व्हाइल कैलकुलेटिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। फिर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स है, इन्वेस्टमेंट में 2 इन्वेस्टमेंट है, एक तो 10% टैक्सेबल इन्वेस्टमेंट्स, फेस वैल्यू है 1,70,000, और दूसरा है शेयर्स इन सब्सिडरी कंपनी। तो ये जो टैक्सेबल इन्वेस्टमेंट है ना, वो कैसा इन्वेस्टमेंट है, कैन यू टेल मी। देयर आर 4 ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट्स, कौन से हैं, व्हाट आर द 4 ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट्स, व्हाट आर द 4 ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट्स गाइस, कैन यू रिपीट। नंबर 1 इज, व्हाट आर द 4 ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट्स, याद है आपको, मैंने आपको यहाँ पे नोट में दिया था, व्हाट आर द 4 ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट्स, ये रहा, शेयर्स ऑफ सब्सिडरी कंपनी, प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट्स, DRF यानी डिबेंचर रिडम्पशन फंड, एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन फंड्स,
sinking fund investments. ठीक है, so now let's go back to the balance sheet. हमने अभी देखा, just we have had a look at the list of trading investments. तो balance sheet में you can see कि ये 10% taxable investments हैं, वो कैसे इन्वेस्टमेंट है? नॉन ट्रेडिंग, क्योंकि हमारे लिस्ट में वो नहीं आते. These investments are not necessary for the existence or to carry on the business. Shares in subsidiary company, that is a trading investment, उसको हम assets में include करेंगे. Now let us further analyze. ये जो है preliminary expenditure, वो कैसा है? What kind of an asset is this? It is a fictitious asset, तो उसको आप ध्यान में नहीं लोगे, you will ignore it. Alright. फिर करंट एसेट्स में स्टॉक, यस विल इंक्लूड एज अ करंट एसेट. फिर डेटर्स, तो डेटर्स में याद रखना डेटर्स बैड डेट रिजर्व सोच के इसको इग्नोर मत करना, ठीक है. तो इसमें सब कुछ आएगा, मतलब कि डेटर्स माइनस बीडीआर. अगर यहाँ पे बैड डेट्स होता ना तो डेटर्स माइनस बैड डेट्स माइनस बैड डेट रिजर्व, दोनों चीजें माइनस करने के बाद जो नेट वैल्यू बाहर के कॉलम में, ये हम ध्यान में लेंगे. तो असेट्स में क्या क्या लेंगे? स्टॉक, डेटर्स भी लेंगे, एंड ऑफ कोर्स बैंक बैलेंस एंड प्रीपेड एक्सपेंस. ऑल द फोर आर योर असेट्स, they will be included in assets. इतना क्लियर हो गया? Now look at the adjustments या additional information. Number 1, the present market value of land and building is 15,30,000. इसका मतलब कि हमें जो बिल्डिंग की वैल्यू कितनी लेनी है? 15,30,000 लेनी है. मतलब कि आपकी बैलेंस शीट में बिल्डिंग, आपकी जो वैल्यू दी है ना बिल्डिंग की, ये आप इग्नोर करोगे और उसके सामने जो डेप्री फंड है उसको भी इग्नोर करोगे. जब आपको मार्केट वैल्यू रुपीस में दे देते हैं तो आप क्या करोगे? उसकी कॉस्ट और डेप्री फंड दोनों इग्नोर करोगे, एंड यू विल स्ट्रेट अवे गो फॉर द मार्केट वैल्यू व्हिच इज गिवन इन कैश, व्हिच इज गिवन इन वैल्यू रादर. लेकिन अगर आपको बोला है कि असेट्स की वैल्यू 20% ज्यादा है या 30% ज्यादा है, तो आप ये कैसे, हाउ विल यू इफेक्ट दिस इंक्रीज, इसको कैसे इंक्रीज या डिक्रीज करोगे? तो उस वक्त आपको नेट वैल्यू नहीं लेनी पड़ेगी, ठीक है. सपोज यहाँ पे बोला होता कि बिल्डिंग की वैल्यू 10% ज्यादा लेनी है, सपोज आपको दिया है एडजस्टमेंट में कि बिल्डिंग की वैल्यू 10% ज्यादा लेनी है, तो आप कैसे ज्यादा लोगे? ये जो कॉस्ट है माइनस डेप्री फंड और उसके बाद जो वैल्यू आती है उस पर 10% ज्यादा या 15% कम, जो भी बोला वो करोगे, ठीक है. तो नेट वैल्यू पे परसेंटेज की इफेक्ट होगी. अदरवाइज मार्केट वैल्यू रुपीस में दी है तो विल टेक द मार्केट वैल्यू व्हिच इज गिवन इन रुपीस. While the remaining assets are to be taken at their book value, तो ले लेंगे बाकी की सारी assets हम वहां से कॉपी कर लेंगे बुक वैल्यू पे. देखा जब यहाँ पे दे दिया स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर में, द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये क्या है? ईआरआर है. व्हाट इज दिस? दिस इज ईआरआर. सो ईआरआर ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इन द क्लास ऑफ बिजनेस डन बाय मंथन लिमिटेड इज 10%. देन नंबर 3, income tax assessment up to the last year is complete and there remains no liability for that. लास्ट ईयर तक का इनकम टैक्स असेसमेंट खत्म हो गया है और उस पे कोई भी लायबिलिटी पेंडिंग नहीं है, कुछ भी बाकी नहीं है. एंड द प्रोविजन फॉर टैक्सेशन इक्वल टू 50% ऑफ प्रॉफिट इज क्रिएटेड फॉर दिस ईयर, है ना. तो आपको यू कैन सी प्रोविजन फॉर टैक्सेशन बैलेंस शीट में ही रही. कितनी है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन? यू कैन सी दिस, जस्ट अ मिनट. दिस इज योर प्रोविजन फॉर टैक्सेशन. ये कितनी है? दिस प्रोविजन फॉर टैक्सेशन इज व्हाट? इट इज 50% ऑफ प्रॉफिट, यानी इनडायरेक्टली आपको करंट ईयर का प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिल जाएगा, ठीक है. क्योंकि ये जो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है वो प्रॉफिट का 50% है, तो इसको अगर आप डबल कर देते हो, बिकॉज 50% कट गया ना, और 50% जो है दैट अगेन इज व्हाट यू आर शोइंग एज प्रोविजन फॉर टैक्सेशन. तो इसको डबल कर लोगे तो यू विल गेट द करंट ईयर्स प्रॉफिट बिफोर टैक्स, राइट. तो इनडायरेक्टली ही हैज गिवन यू करंट ईयर्स प्रॉफिट बिफोर टैक्स, राइट. Again I'll go back to that. Now see, और क्या है लास्ट, ये भी, this also is about profit. The profit of the company before tax for the last 3 years has been increasing every year by 1,53,000. पिछले 3 सालों से जो प्रॉफिट है कंपनी का, कौन सा प्रॉफिट? प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितने? 1,53,000 से कॉन्स्टेंटली इंक्रीज होता आ रहा है. मतलब प्रॉफिट हैज बीन कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग ओवर द लास्ट 3 years. मतलब ये कौन सा ट्रेंड हो गया? अपवर्ड ट्रेंड हो गया. तो it follows कि we will have to use weighted average profit, right, while getting the average profit. तो यहाँ पे WAP यूज करेंगे, weighted average profit, क्योंकि every year profit is increasing by 1,53,000. Value of the goodwill is to be calculated at 3 years purchase price of the weighted average super profit of last 3 years. तो यहाँ पे वैसे भी बता दिया आपको फ्रेंकली कि weighted average profit यूज करना है और पिछले 3 सालों की परचेज करनी है. तो चलो एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं. We have analyzed the sum. Now let's get down to solving the example. So just let us start it. Okay.
तो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू असेट्स माइनस लायबिलिटीज माइनस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो यहाँ पे असेट्स की लिस्ट बनाएंगे, तो उसके लिए we'll have to pick and choose assets from the balance sheet। तो सबसे पहले कौन सी आपकी assets कौन सी वैलिड है? बिल्डिंग। लेकिन बिल्डिंग की तो आपको क्या दिया है? मार्केट वैल्यू दे दी है 15,30,000। तो बिल्डिंग की वैल्यू ले लेते हैं, असेट्स में इंक्लूड करेंगे यहाँ पे। लेट्स मेंशन हियर बिल्ड। सबसे पहले असेट्स में आएगा बिल्डिंग and the amount is 15,30,000। All of you also solve the example with me। मेरे साथ सॉल्व करो, मैं जैसे करता हूं वैसे कॉपी नहीं करो, समझ के सॉल्व करो मेरे साथ। सो बिल्डिंग इज 15,30,000। अच्छा, और क्या असेट्स में ले सकते हैं हम? असेट्स में नेक्स्ट क्या है आप लोगे? ये मशीनरी 13,60,000 दिख रहा है ना, मशीनरी 13,60,000। और उसके सामने डेप्री फंड कितना है मशीनरी पर? 1,70,000, राइट। तो चलो यहाँ पे मशीनरी की नेट वैल्यू लेंगे यहाँ पे। सो मशीनरी कितनी है? मशीनरी 13,60,000 और उसमें से हम डेप्री फंड माइनस कर देंगे, माइनस डेप्री फंड। What is the amount of डेप्री फंड? 1,70,000। सो बाहर अमाउंट आएगी, नेट वैल्यू आएगी 13,60,000 माइनस डेप्री फंड 1,70,000। सो आउटर कॉलम में आएगा 11,90,000। 11,90,000। ओके, ऑल राइट। और क्या है असेट्स में? मशीनरी। और व्हाट एल्स कैन वी इंक्लूड इन असेट्स? तो मशीनरी हो गया, गुडविल। इन्वेस्टमेंट्स में हम क्या लेना है? सिर्फ आपको लेना है शेयर्स इन सब्सिडरी कंपनी, बिकॉज दैट इज द ओनली ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट व्हिच इज देयर इन द बैलेंस शीट। तो इंक्लूड करते हैं असेट्स में यहाँ पे शेयर्स इन सब्सिडरी कंपनी, shares in subsidiary company। and what is the amount of shares in subsidiary company? 1,70,000। 1,70,000, all right। ओके, और क्या है असेट्स में? स्टॉक लेना है 4,76,000 और डेटर्स लेने हैं 3,23,000, ऑलराइट। और बैंक बैलेंस भी लेना है और प्रीपेड एक्सपेंस भी लेना है। ऑल द फोर एसेट्स आर टू बी इंक्लूडेड। चलो पहले लिखते हैं स्टॉक 4,76,000। सो यहाँ पे आएगा स्टॉक 4,76,000, ऑलराइट। देन व्हाट एल्स? डेटर्स। तो डेटर्स की आपको नेट वैल्यू लेनी है, ठीक है। डेटर्स आर 3,23,000। डेटर्स आर 3,23,000 और बैंक बैलेंस 136 एंड प्रीपेड एक्सपेंस 51। तो बैंक बैलेंस 136 यहां पे इंक्लूड कर देते हैं। बैंक बैलेंस बैंक बैलेंस 1,36,000 and of course last is prepaid expenses 51,000। बस, और कोई तो है ही नहीं। देयर इज नो अदर इंफॉर्मेशन ऑन असेट्स आल्सो। तो पूरी असेट्स आ गई। चलो इसका टोटल कर लेते हैं। लेट अस सी कितनी होती है असेट्स। 15,30,000 प्लस 11,90,000 प्लस सब्सिडरी कंपनी के शेयर्स 1,70,000 स्टॉक, डेटर्स एंड बैंक बैलेंस एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस 51,000। सो टोटल असेट्स आती है यहाँ पे, द टोटल ऑफ असेट्स विल बी, कितनी आपकी टोटल आती है? 38,76,000। टोटल असेट्स आती है 38,76,000, राइट। नाउ लेट अस कंपाइल द लिस्ट ऑफ वैलिड लायबिलिटीज। कौन सी लायबिलिटीज आएंगी तो उसका लिस्ट देखते हैं यहाँ पे।
लायबिलिटीज में हम ऊपर जाएंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल लायबिलिटी नहीं है, प्रेफरेंस शेयर हम एंड में लेस करेंगे। तो लायबिलिटीज कौन सी है? सबसे पहले 15% डिबेंचर्स, तो इंक्लूड करो लायबिलिटीज में यहां पे 15% डिबेंचर्स, 15% डिबेंचर्स। कितने हैं डिबेंचर्स? द अमाउंट ऑफ डिबेंचर्स इज 6,80,000। डन। नाउ व्हाट एल्स? और क्या है आपके पास लायबिलिटी में? लेट्स अगेन गो बैक। डिबेंचर्स आ गए, वर्कमैन्स प्रॉफिट शेयरिंग फंड, दैट ऑफ कोर्स इज योर लायबिलिटी, सो वो भी इंक्लूड करेंगे यहां पे। सो वर्कमैन्स प्रॉफिट शेयरिंग फंड, वर्कमैन्स प्रॉफिट शेयरिंग फंड, what is the amount of workman's profit sharing fund? 1,19,000. वर्कमैन्स प्रॉफिट शेयरिंग फंड 1,19,000 इंक्लूड हो गया। ऑलराइट, और क्या है आपके पास लायबिलिटीज में? डेप्ट फंड तो वी हैव डेल्ट विथ। ऑलराइट, क्रेडिटर्स है, बिल्स पेएबल, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ऑल द फोर विल बी इंक्लूडेड इन लायबिलिटीज। तो चलो इसकी भी लिस्ट यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, क्या क्या है इसमें। सबसे पहला आपके पास यहाँ पे है क्रेडिटर्स, और क्रेडिटर्स हैं 2,50,000। नेक्स्ट इज बिल्स पेएबल, the amount of bills payable is 90,000. This part is so easy, no? If you know what to take and what to ignore, then this part is so easy. Step number 1 is so crucial and so easy also, if you have the clarity. ठीक है, तो बिल्स पेएबल आपका यहाँ पे आ गया, और क्या बाकी रहा भैया? बिल्स पेएबल हो गया, फिर प्रोविजन फॉर टैक्सेशन एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, राइट? तो चलो उसको भी यहाँ पे ले लेते हैं, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, ठीक है। द प्रोविजन फॉर टैक्सेशन इज 3,40,000। ऑलराइट, एंड लास्ट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बिकॉज दैट ऑफ कोर्स इज योर लायबिलिटी, एंड द अमाउंट विल बी 17,000। डन। बस तो इतनी लायबिलिटीज आएगी, और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल तो हम एंड में लेस करते हैं। तो लेट अस टोटल अप ऑल दिस लायबिलिटीज, 6,80,000, then you have workman's profit sharing fund, so 1,19,000। आप भी मेरे साथ करना कैल्शियम एग्जांपल, जस्ट कीप अप विद मी, सिर्फ देखते मत रहना, यू आल्सो सॉल्व द सम अलोंग विद मी, आई होप यू आर डूइंग दैट ऑलरेडी। और टोटल आपकी जो लायबिलिटीज आएंगी यहाँ पे वो है 14,96,000, दैट इज द टोटल ऑफ लायबिलिटीज। तो हमें असेट्स मिल गई और हमें लायबिलिटीज मिल गई, एंड व्हाट वी विल नाउ ऑब्टेन इज, नाउ वी कैन नाउ ऑब्टेन कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड में असेट्स मिल गई, लायबिलिटीज मिल गई, और नाउ यू हैव टू डिडक्ट प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो चलो नीचे उसको फाइंड कर लेते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू असेट्स यानी 38,76,000 माइनस आपकी लायबिलिटीज कितनी है 14,96,000, एंड माइनस यू हैव टू डिडक्ट प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जो आपको मिल जाएगी बैलेंस शीट से, विच इज ऑलरेडी देयर इन द बैलेंस शीट। ठीक है, तो बैलेंस शीट में है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, बैलेंस शीट में है, यू ऑलरेडी हैव प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट। कितना है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 5,10,000। दिस इज योर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। सो कर दिया मैंने, असेट्स माइनस लायबिलिटीज माइनस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। नाउ फाइनली वी गेट, क्या आएगा आपका कैपिटल एम्प्लॉयड, 38,76,000 माइनस 14,96,000 माइनस 5,10,000। So what will be your capital employed? 18,70,000 रुपीज आपका कैपिटल एम्प्लॉयड आएगा
Let me get it. Rupees 18 lakhs 70,000. This is your answer to step number 1. This is called capital employed. I hope all of you are absolutely clear about what I have done so far, right? Now, ये खत्म हो गया. Now, what is the second step? We have to find out expected profit. So let's get down to the last step, the second step rather, expected profit. इसका फॉर्मूला भी है ही आपके सामने. कैपिटल एम्प्लॉयड जो कि ये रही इनटू, दिस इज योर कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू ERR. ठीक है, तो लेट्स डू दैट. कैपिटल एम्प्लॉयड 18 lakhs 70,000, 18 lakhs 70,000 into what is the ERR given as example. Again go back to the question. ये रहा ERR कितना दिया है आपको 10%. सो मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको 10% के साथ. सो मल्टीप्लाइड बाय 10% एंड योर expected profit will be rupees 1,87,000. This is your expected profit. Clear? So EP is equal to CE into ERR. आप briefly इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, CE into ERR. It's damn easy, right? Now let's move further to step number 3, average profit. लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट आपको क्रिप्टिक क्लू की तरह दिया है, मतलब प्रॉफिट स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर में दिया नहीं है. क्यों? क्योंकि इसमें जरा ध्यान से देखना, ये 3 और 4, इसमें ये जो है ना, इफ यू क्रैक 3 and 4 you will not only obtain your current year's profit but you will also obtain past year's profits. ठीक है, तो चलो यहां से इसको निकालते हैं. इनकम टैक्स असेसमेंट वो तो देख लिया हमने, लेकिन द प्रोविजन फॉर टैक्सेशन विच इज इक्वल टू 50% ऑफ प्रॉफिट इज क्रिएटेड फॉर द ईयर. तो आपकी कितनी है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन? कितनी है? 3,40,000. देख रहे हो ना ग्रीन कलर में. ठीक है, तो ये जो है this is your provision for taxation 3,40,000. this is what 50% of profit. हाँ, तो ऐसा वैसे तो आई बॉल कर सकते हो, पता चलता है कि इससे तो इसका डबल कर लो तो आपको मिल जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स. लेकिन अगर आपको कि नहीं व्हाट इज द श्योर, अगर 40% होता है तो रेट ऑफ टैक्सेशन, तो अगर कोई भी परसेंटेज हो आप ये मेथड यूज करो कि सपोज एवरेज प्रॉफिट को आप कैसे निकालोगे. सपोज टोटल प्रॉफिट इज ₹100 और प्रोविजन फॉर टैक्सेशन कितना है उसका 50%. ठीक है, तो देयरफॉर यहां पे लिखेंगे देयरफॉर प्रोविजन फॉर टैक्सेशन कितना होगा? ₹100 into 50%. सो व्हाट मस्ट बी द प्रोविजन फॉर टैक्सेशन? 50, राइट? और आपकी एक्चुअल कितनी है? व्हाट इज योर एक्चुअल प्रोविजन फॉर टैक्सेशन? व्हाट इज द एक्चुअल प्रोविजन? एक्चुअल प्रोविजन आपकी है, इट इज गिवन इन द एग्जांपल. ठीक है, एक्चुअल प्रोविजन है आई थिंक 3,40,000, बट लेट्स बी डबली श्योर 3,40,000 है. ठीक है, तो एक्चुअल प्रोविजन जो आपकी है वो है 3,40,000, राइट? एक्चुअल प्रोविजन इज 3,40,000. ठीक है, तो आप ऐसा कर सकते हो, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन जब 50 रुपीज होती है तो आपका एक्चुअल प्रॉफिट कितना होता है? टोटल प्रॉफिट 100. तो अगर आपकी प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 340 है तो आपका प्रॉफिट कितना होगा? ठीक है, यू पुट एन इक्वेशन लाइक दिस एंड देन क्रॉस मल्टीप्लाई. देखो यहाँ पे प्रोविजन फॉर टैक्सेशन और प्रोविजन फॉर टैक्सेशन और यहां पे आएगा टोटल प्रॉफिट. क्लियर? तो अगर प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 50 रुपीज होती है, जो कि यहाँ पे दिख रहा है ना, जब 50 रुपीज होती है तो टोटल प्रॉफिट कितना होता है? 100 रुपीज. तो ये जब 50 रुपीज होती है तो टोटल प्रॉफिट कितना होता है? 100 रुपीज. ठीक है, तो अगर एक्चुअल प्रोविजन 3,40,000 है तो प्रॉफिट आपका कितना होगा? सो योर प्रॉफिट मस्ट बी हाउ मच? डबल हो जाएगा. यू कैन इजीली सी दिस
6,80,000 must be the current year's profit before tax. This must be the current year's profit before tax. Correct? This must be your current year's profit before tax. और ये प्रॉफिट के बारे में और आपको चीज बताइए नंबर 4 कि कंपनी का प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 इयर्स हैज बीन इंक्रीजिंग एवरी ईयर बाय 1,53,000. यानी ये जो आपका प्रॉफिट है 6,80,000 बिफोर टैक्स, और ये भी कैसा प्रॉफिट है? ये भी कैसा प्रॉफिट है? बिफोर टैक्स. कंपनी का बिफोर टैक्स प्रॉफिट हैज बीन इंक्रीजिंग एवरी ईयर बाय 1,53,000. करेक्ट? तो आपका अभी कितना प्रॉफिट है? 6,80,000. ये प्रॉफिट पिछले साल की कंपैरिजन से कितना ज्यादा होगा? 1,53,000. So if you want to get the last year's profit, what you have to, if you want to go back, what you have to do is 6,80,000 में से 1,53,000 माइनस कर दोगे, आपको लास्ट ईयर का प्रॉफिट मिल जाएगा. ठीक है? तो मैं यहाँ पे लिखता हूं अभी कौन सा, व्हाट इज द ईयर ऑफ द बैलेंस शीट का कौन सा ईयर है? 20 है, 2020, द एपॉक मेकिंग, दैट फिनोमिनल ईयर. तो अभी कौन सा, व्हाट इज द ईयर ऑफ बैलेंस शीट? 1920. तो पिछले 3 साल अगर आप निकाले तो कौन सा ईयर होगा? अभी है 2019-20. करेक्ट? उससे लास्ट ईयर कौन सा होगा? 2018-19. एंड द ईयर प्रायर टू द लास्ट ईयर वुड बी 2017-18. करेक्ट? और आपका कौन सा प्रॉफिट है? व्हाट इज द प्रॉफिट फॉर द करेंट ईयर? आपका प्रॉफिट कौन सा है? ये है. तो 6,80,000 इज द प्रॉफिट जो अभी हमने यहां से निकाला. ठीक है? और ये प्रॉफिट पिछले साल की कंपैरिजन में कितना ज्यादा है? 1,53,000. तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इफ आई वांट टू गो बैक, आई हैव टू डिडक्ट द अमाउंट ऑफ, आई हैव टू डिडक्ट द डिफरेंस. ठीक है? तो मैं इसको कैसे निकालूंगा? अगर मुझे ये साल का प्रॉफिट चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 6,80,000 में से कितना डिफरेंस बता रहा है? 1,53,000 हम माइनस करेंगे तो आपको प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट मिल जाएगा. 6,80,000 माइनस 1,53,000. सो लास्ट ईयर हमें प्रॉफिट कितना मिला होगा? 5,20,000. जस्ट अ मिनट, कितना मिला होगा? जस्ट अ मिनट, 5,27,000. करेक्ट? और ये प्रॉफिट भी एज कंपेयर टू द लास्ट ईयर इज हायर बाय 1,53,000. तो अगर आपको ये साल का प्रॉफिट भी चाहिए तो भी आपको इसमें से यू हैव टू अंडरगो द सेम प्रोसीजर. ठीक है? तो यहां पे भी ऐसा ही करेंगे. क्या करेंगे? प्रीवियस ईयर का जो प्रॉफिट है 5,27,000, उसमें से भी वंस अगेन वी विल डिडक्ट 1,53,000. करेक्ट? और आपको मिल जाएगा पहले साल का प्रॉफिट. सो 5,27,000 माइनस 1,53,000. तो पहले साल में प्रॉफिट कितना मिला होगा? 3,74,000. दैट इज द प्रॉफिट यू अर्न इन द फर्स्ट ईयर 17-18. उसके बाद इंक्रीज कितना हुआ? 1,53,000 से इंक्रीज हो गया, कितना हो गया? 5,27,000. और उसमें भी इफ यू ऐड 1,53,000 देन यू गेट योर करंट ईयर्स प्रॉफिट. गॉट इट? तो ये जो अगर इफ यू ट्रैवल बैक, इफ यू गो बैक, देन यू हैव टू गो ऑन डिडक्टिंग द डिफरेंस. ठीक है? नेक्स्ट ईयर अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू रहा तो आपको क्या करना पड़ेगा? यू विल हैव टू ऐड 1,53,000. राइट? लेकिन ये तो अपने स्कोप की बाहर की बात है. इन शॉर्ट प्रॉफिट इज कॉन्स्टेंटली राइजिंग, सो वी विल हैव टू यूज वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड. ठीक है? तो लेट अस मूव. वेटेड एवरेज प्रॉफिट में क्या करना है आपको? ईयर, प्रॉफिट्स, वेट एंड टोटल वेट एंड वेटेड प्रॉफिट, ये चारों चीजें आपको टेबल, आपको ये 4 कॉलम का टेबल बनाना पड़ेगा. ठीक है? तो हियर इज द टेबल. टेबल इज, यू कैन सी द टेबल. चलो पहले साल लिख देते हैं. कौन से साल है? 17 से 20 तक है. तो 2017-18, फिर 2018-19 एंड 2019-20. दिस आर द 3 इयर्स. इनके प्रॉफिट फिगर्स जो अभी हमने निकाले इसको कॉपी कर लेंगे. 374,527. सो 3,74,000, फिर 5,27,000 एंड ऑफ कोर्स लास्ट ईयर का प्रॉफिट मुझे याद है जो अभी हमने ऑब्टेन किया 6,80,000. These are the 3 profit figures: 374, 527 and 680. And profits are constantly rising.
सो वी विल ऑल्सो असाइन वेट्स इन दी असेंडिंग ऑर्डर, जैसे जैसे प्रॉफिट बढ़ता है उसको इस तरह से हम वेट्स देंगे. If the profits were declining, then we would assign weights in a descending order. लेकिन यहाँ पे बढ़ रहे तो हम उनको बढ़ा रहे हैं. चलो मल्टीप्लाई कर दो ये दोनों कॉलम को. सो यहाँ पे आपका वेटेड प्रॉफिट आएगा 3,74,000. यहाँ पे डबल होके 5,27,000, so it will be 10,54,000 and multiplied by 3, so 6,80,000 into 3, so it will be 20,40,000. लास्ट ईयर का प्रोडक्ट आएगा 20,40,000, राइट. चलो इन तीनों को टोटल कर दो एंड यू विल गेट टोटल वेटेड प्रॉफिट. सो 3,74,000 प्लस 10,54,000 प्लस 20,40,000, टोटल आता है 34,68,000, राइट. 34,68,000 और टोटल वेट आता है, टोटल वेट्स आते हैं 6. सो यू विल गेट वेप, जिसको हम कह सकते हैं वेप, इसको ब्रीफली वी कैन कॉल इट वेप. टोटल वेटेड प्रॉफिट कितना है 34,68,000 डिवाइड बाय आपका टोटल वेट है 6. सो यू विल गेट योर वेटेड एवरेज प्रॉफिट कितना आएगा डिवाइड बाय 6. हाउ मच आर यू गेटिंग? रुपीज 5,78,000. This is your weighted average profit, WAP. This is your WAP. Got it? और इसमें से आपको क्या लेस करना नहीं भूलना है, एनटीपी आपको इसमें से लेस करना है. नॉन ट्रेडिंग इनकम, टैक्सेशन एंड प्रेफरेंस गिवन, ये तीन चीजें आपको माइनस करनी भूलनी नहीं है. तो लेट अस डिडक्ट इट. कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट आफ्टर एनटीपी हमारा कितना आया? प्रॉफिट बिफोर टैक्स, वेब बिफोर टैक्स कितना आया? 5,78,000. तो चलो मैं यहां पे लिख देता हूं वेटेड एवरेज प्रॉफिट. वेटेड एवरेज प्रॉफिट बिफोर टैक्स 5,78,000. इसमें हमारा सबसे पहला डिडक्शन आएगा क्या? नॉन ट्रेडिंग इनकम. ठीक है, तो यहां पे सबसे पहले आएगा income from non-trading investments. Income from non-trading investments. अच्छा, आपके पास कौन सा नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट है? वो था ना 10% टैक्सेबल इन्वेस्टमेंट वाला, वो ही आपका नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट है. तो कहां गया? ये रहा. दिस इज योर नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट 2,04,000. लेकिन हमेशा याद रखना कि इसकी इनकम हमेशा इट इज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू. सो नॉट 2,04,000 बट वी विल बेस द कैलकुलेशन ऑन 1,70,000. एंड व्हाट इज द रेट ऑफ इनकम? 10%. सो 1,70,000 पर 10%, that is your non-trading income. So let's get back to that table. कितना था? उसकी फेस वैल्यू कितनी है? 1,70,000. ऑलवेज ऑन फेस वैल्यू, ये याद रखना. इट इज ऑलवेज ऑन फेस वैल्यू, ऑलवेज ऑन फेस वैल्यू. अगर मार्केट वैल्यू दी है तो मार्केट वैल्यू भी मत लेना और नेट वैल्यू भी मत लेना. ऑलवेज ऑन फेस वैल्यू, करेक्ट. तो कितना है आपका? व्हाट इज द नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट इज, उसकी फेस वैल्यू है 1,70,000 and the rate of income is 10%. It is always attached to the name. तो यहां पे आएगा 17,000. This is your non-trading income. इसको लेस कर दो यहां से. This was our deduction number 1. So आपकी प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा 5,61,000. करेक्ट. एंड व्हाट इज द रेट ऑफ टैक्सेशन हियर? स्टेप नंबर 2. पहला कौन सा लेस किया? नॉन ट्रेडिंग इनकम. सेकंड क्या है? टी, एंड टी यानी टैक्सेशन. तो यहाँ पे टैक्सेस लेस करते हैं. एंड व्हाट इज द रेट एप्लीकेबल हियर? 50%. तो यहाँ पे लेस करेंगे 50% टैक्सेशन. इसका बिल्कुल आधा हो जाएगा. कितना होगा? 2,80,500. 2,80,500, राइट.
तो कितना आएगा आपका नेट वैल्यू? ऑफ कोर्स द सेम अमाउंट 2,80,500। ठीक है, तो हमने एन टी लेस कर दिया एंड लास्ट वी हैव टू डिडक्ट प्रेफरेंस डिविडेंड विच इज अवेलेबल फ्रॉम द बैलेंस शीट। तो थर्ड नंबर का हमारा जो डिडक्शन है वो है प्रेफरेंस डिविडेंड। तो यहां पे लेस करेंगे प्रेफरेंस डिविडेंड। ठीक है, कितना है आपका प्रेफरेंस डिविडेंड? तो लेट्स गो बैक टू द बैलेंस शीट। आपकी बैलेंस शीट में हियर इट इज, कितनी आपकी प्रेफरेंस? 5,10,000 एंड व्हाट इज द रेट ऑफ डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल? 10%। तो चलो उसको लेस कर देते हैं, 5,10,000 इंटू 10%। प्रेफरेंस डिविडेंड, सो कितना? 5,10,000 इंटू 10%। सो व्हाट विल बी द, कितना डिविडेंड आएगा? 51,000। सो इसमें से 51,000 लेस कर दिया हमने। सो नेट अमाउंट जो हमारे पास आएगी कितनी होगी? हमारे पास नेट अमाउंट आएगी 2,80,500 माइनस 51,000, कितनी आएगी? 2,29,500। दिस इज अवर नेट एवरेज प्रॉफिट आफ्टर ऑल द अप्रोप्रिएशंस, ऑल द एडजस्टमेंट्स। ठीक है, क्या क्या देखा हमने? एनटीपी लेस कर दिया। पहले तो हमने क्या किया प्रॉफिट में, फिर से एक बार, प्रॉफिट इज इंक्रीजिंग एवरी ईयर 1,53,000। तो करंट का प्रॉफिट ऑब्टेन किया और उसमें से 1,53,000 का डिफरेंस माइनस करते चले और पिछले 2 साल का प्रॉफिट हमने इस तरह से ऑब्टेन कर दिया। वी कैन सी प्रॉफिट्स आर कांस्टेंटली इंक्रीजिंग, सो वी ऑप्टेड फॉर वेब, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। यहाँ पे हमने वेब फाइंड कर दिया और वेब के बाद हमें क्या लेस करना था? एनटीपी लेस करना था, ये हमने लेस कर दिया। दिस इज योर नॉन ट्रेडिंग इनकम, दिस इज योर टैक्सेस एंड दिस इज योर प्रेफरेंस डिविडेंड। ये लेस करने के बाद हमको क्या मिला? एवरेज प्रॉफिट। नाउ अवर जॉब इज डन, ऑलमोस्ट डन। सो अब क्या करना है? व्हाट इज द स्टेप नंबर 4? सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। तो व्हाट इज योर एवरेज प्रॉफिट? अभी ऊपर देखा ना, 2,29,500। सो एवरेज प्रॉफिट आएगा 2,29,500 जो अभी हमने निकाला। और एक्सपेक्टेड प्रॉफिट हमने प्रीवियस स्टेप में कैलकुलेट कराई है, स्टेप नंबर 2 में। सो I have to scroll up and down here, but you can do it in your book in a very easy, in a pretty easy manner. तो आपका कितना एक्सपेक्ट प्रॉफिट? 1,87,000। ठीक है, तो चलो 1,87,000 लेस कर देते हैं एवरेज प्रॉफिट से, 1,87,000। सो आपका सुपर प्रॉफिट आएगा ये दोनों का गैप, माइनस 1,87,000। तो आपका सुपर प्रॉफिट यहाँ पे आएगा 42,500। ऑलराइट, और गुडविल कैसे करनी है आपको? गुडविल में क्या है? मल्टीप्लायर। What is the multiplier in case of goodwill? How are we supposed to calculate goodwill? ये रहा, goodwill is based on 3 years purchase of weighted average super profit of last 3 years। यानी यहाँ पे मल्टीप्लायर आपको जो यूज करना है वो है 3 years। So let us do that। यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, ये जो डिफरेंस है उसको, ये रहा। So super profit into 3 years। ठीक है, और 42,500 into 3। सो आपको गुडविल कितनी मिलेगी? व्हाट विल बी द फाइनल आंसर? into 3। सो आपकी गुडविल आएगी 1,27,500। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ गुडविल। गॉट इट? दिस इज हाउ यू आर सपोज टू सॉल्व एन एग्जाम्पल। मैंने आपको जो नोट्स बताई उसको ध्यान से बहुत ही अटेंटिवली पढ़ोगे तो आई एम श्योर कि बाकी का जो एग्जाम्पल है वो फॉर्मेलिटी रह जाएगा। राइट, ऑल यू हैव टू डू इज अंडरस्टैंड, स्टडी द नोट्स वेल एंड देन यू प्रैक्टिस अ फ्यू एग्जांपल्स। जैसे कि ये एग्जांपल जो मैंने सॉल्व किया वो था गुजरात यूनिवर्सिटी 2016 का। You can attempt all the other examples which are asked in the Gujarat University papers. Right? That's it for today. Wish you all the best. Thank you.